आई कीप टॉकिंग अबाउट इम्प्लाइड डिमांड क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि जो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स होंगे जो मेंस में अपीयर कर रहे हैं, ऐसा होगा कि उनको एक्सप्लिसिट डिमांड तो पता होगा बट दे वुड नॉट बी अंडरस्टैंडिंग कि इम्प्लिसिट डिमांड क्या है. और अगर इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज इम्प्लिसिट डिमांड, देन इट इज गोइंग टू इनहेंस एज वेल एज मैक्सिमाइज योर मार्क्स बाय इवन लाइक 2 मार्क्स 3 मार्क्स इन वन क्वेश्चन, स्पेशली 15 मार्कर में तो डेफिनेटली. अगर ऐसे कंक्लूजन सुटेबली कर दिया, देन यू आर बाउंड टू गेट गुड मार्क्स. यहाँ पे दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दैट. कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कमिट कर रहे हैं इन देयर ओन आंसर, कि कभी कभी कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑन स्पॉट नहीं जा रहा है, या फिर कंक्लूजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर में डिमांड ही नहीं समझ पा रहे हैं. तो वो जो स्मॉल स्मॉल नुआंसेस होते हैं ना, वही एक्चुअली डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है कि क्यों किसी को 420 या 430 आ रहा है और क्यों किसी को 350 आ रहा है. दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड इफ यू सी थ्रू माय मार्कशीट, देन आई हैव इम्प्रूव्ड ऑलमोस्ट ऑन एवरी फ्रंट, ऑन एवरी सब्जेक्ट, बी इट जीएस और बी इट ऑप्शन और बी इट एसए. आई वुड लाइक टू गिव स्पेशल थैंक्स टू Arvind Agrawal sir, who was there to guide me, and also to go through my own preparation, understanding my own level of preparation, and then suggesting me how to improve further. Hi everybody, I'm Sumit Kumar Gupta, and I have secured rank 200 in UPSC Civil Services 2024 examination. This was my third attempt. In my first attempt, I reached till the interview stage and couldn't make it to the final list. I missed the final list by 14 marks. That year the cutoff was 960 and I was able to secure 946. Thereafter, in my second attempt, I couldn't qualify the prelims examination and I missed prelims by 1 mark. And this was my third attempt. And if you see through my mark sheet, then I have improved almost on every front, on every subject, be it GS or be it option or be it essay. I would like to give special thanks to Arvind Agrawal sir, who was there to guide me and also to go through my own preparation, understanding my own level of preparation and then suggesting me how to improve further. And उसी कॉन्टेक्स्ट में देर वेर लाइक कंटिन्यूस डिस्कशन विद अरविंद अग्रवाल सर रिगार्डिंग हाउ आई कैन इम्प्रूव माई इंट्रोडक्शन, माई बॉडी, माई कंक्लूजन. वो जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, वो जो छोटे छोटे वैल्यू एडिशंस होते हैं, विच मे बी आई वॉज मिसिंग इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट वैल्यू एडिशन वॉज मेड बाय सर एंड हेंस I was able to secure this ring. Before going further, I would like you to go through my own mark sheet. So this was my mark sheet. This was my first attempt where you can see in GS1 I was able to score 103. This year my mark sheet was 105 and simultaneously there was marked improvement in every GS. Be it GS2 114 to 118, GS3 79 to 85 or GS4 115 to 117. So those small things, it was not fluke, but it was a test of perseverance and a very strategic preparation under one guidance and in one direction. And hence, this year I have joined Civils Daily in the capacity of mentorship. I would be guiding fellow aspirants, and this is my way of giving back to the community so that maximum number of students can get help as well as maximize their score as we proceed further. So before going further, we'll have to look into several FLTs of Civils Daily which they are asking. So first and foremost thing which was very important for me in this attempt was that the FLTs, the questions of the FLTs which was being asked by the Civils Daily was more or less related to either current affairs or it was based on the set pattern of the UPSC. For example, UPSC loves to give context to the questions, be it such as right to property has become very much important in India, and hence they will be asking questions to describe the importance of right to property in India. So these small contextual understanding, these small related to the current affairs, it becomes all the more important. And even if you go through the UPSC previous year questions, then they set the context and then they ask you question. They set the context with the current affairs, then they ask you questions. So वो जो small efforts जो होते हैं ना, वो small understanding जो होती है, which I was lacking in my first attempt, thankfully by God's grace and by Arvind sir's grace, I mean understanding, I was able to improvise further. So in this session, I would be discussing major questions of FLTs. For me, I think it is all the more relevant, all the more important because FLTs के hit ratio last time के जो मैंने attempt दिए थे उसमें ज़्यादा थे. In the sense that बहुत सारे questions ऐसे आए थे जो directly UPSC में पूछे गए थे. For example, citizen charters के ऊपर. I still remember जहाँ पे citizen charter के ऊपर एक उनका जो model answer था, वहाँ पे they mentioned about windows of hope, I think Bilaspur model of citizen charter, and this I was able to recall in the main examination and I utilized that जो case edition था या फिर जो value edition था, and I'm sure it must have helped at least 1 or 2 marks to maximize my score. And so my principle is that maybe you guys can also replicate the same
by going through the solutions of FLT, by going through or attempting FLTs, and by having a fruitful discussion with the mentors. Since I've joined Civils Daily as a mentor and as a capacity of mentorship, it is my responsibility to discuss all the major questions which is being asked in the FLTs. And in fact, the Civils Daily has released FLT1, which is primarily based on GS2, and I would be discussing major GS2 questions, which in my opinion becomes all the more relevant for this year mains. क्योंकि ये सारे FLT के questions है ना, it is either PYQ based or PYQ theme based or the current affairs based, which UPSC मतलब loves asking. इसलिए मैं कुछ जो मेजर क्वेश्चंस हैं which I believe may be asked or may become relevant in order to answer those questions, I am going to discuss that. So the first question is that describe the evolution of the right to property in India through constitutional amendments and key court judgments. Now, right to property in the recent 2024 only, I think there was this judgment by the Supreme Court in which right to property has been identified, and how Supreme Court has told that right to property as an individual right should be balanced with the overall interest of the society, overall interest of the country. Now, this question becomes all the more relevant for this year's UPSC mains. So first of all, I would like to say that before we go further, brainstorming of the questions is more important. जैसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तो मेरा जो लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी था कि whenever I get questions, तो I'll think for a while, maybe 30 seconds, 20 seconds, 45 seconds, depending on the questions, depending on the context, depending on the gravity of the questions. I would try to understand the context as well as theme. वो उसी में आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्या हो रहा है. जैसे ये वाले भी क्वेश्चन में जो आप देखिएगा, तो इसका थीम क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया. दिस थीम आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए. उसके बाद देन ओनली यू कैन जंप कि हाँ क्वेश्चंस व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो मेजर क्वेश्चन ये है कि पहले तो इवोल्यूशन डिस्कस करना है, उसके बाद फिर जाके डिस्कस करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और की कोर्ट जजमेंट से कैसे इवोल्यूशन हुआ. एंड नाउ इन द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस आई वुड बी गिविंग अ प्रॉपर गाइडलाइन कि एक आइडियल इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, एक बॉडी कैसा होना चाहिए जहां पे यू आर मीटिंग द की डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन, एक आइडियल कंक्लूजन कैसा होना चाहिए जो कि वे फॉरवर्ड होगा या फॉरवर्ड लुकिंग होगा. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे एक आइडियल स्ट्रक्चर शुड लुक लाइक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक आइडियल इंट्रोडक्शन, एक आइडियल बॉडी और एक आइडियल कंक्लूजन कैसा होना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस में. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी. नाउ राइट टू प्रॉपर्टी के कितने सारे इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट इवोल्यूशन एज वेल. तो पहला इंट्रोडक्शन हो सकता है कि कैसे आर्टिकल से स्टार्ट हुआ था. पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ में था. नाउ इट हैज मूव टू आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो एक इंट्रोडक्शन हो सकता है. दूसरा इंट्रोडक्शन रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है. रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था प्रॉपर्टीज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो हो सकता है. तीसरा हो सकता है आपका इंटरनेशनल अगर कोई रूल्स है या फिर इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन है. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 ऑफ द UDHR टॉक्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी. नाउ all these three introduction can become relevant in order to answer as well as hitting directly to the theme of the questions. क्योंकि इंट्रोडक्शन ही इतना अच्छा क्रिस्प और डायरेक्ट होना चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ के ही लगना चाहिए कि ओके दिस पर्सन नोज अबाउट द क्वेश्चन. यहां पे इंट्रोडक्शन हो गया. अब नाउ अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस. यहां पे क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है और की कोर्ट जजमेंट्स में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है. नाउ डिमांड में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट हुए हैं, फोर्थ अमेंडमेंट हुए हैं, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, दिस बिकम्स ऑल द मोर रेलिवेंट इन दिस एस्पेक्ट. उसके बाद वंस यू हैव सेट द कॉन्टेक्स्ट, आफ्टर दैट यू हैव एड्रेस द फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो की कोर्ट जजमेंट आए हैं उसको एक्सप्लेन करना है. उसमें भी फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, जैसे सांता वर्सेस मद्रास हो गए, या फिर जाके कामेश्वर प्रसाद हो गई, या फिर बिहार लैंड एक्विजिशन पे भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है. और इनफैक्ट जो रिसेंट जो हुआ है 2024 में, वो महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट. तो हाँ, प्रॉपर्टी ऑनर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो जजमेंट आया था. नाउ यू कैन हाईलाइट दोज आंसर्स, दोज जजमेंट्स यहाँ पे. उसके बाद लास्टली आ जाता है जब वंस यू हैव एड्रेस्ड
इंट्रोडक्शन एंड बॉडी। अब ये कंक्लूजन जो होना चाहिए एक बैलेंस्ड होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी में एक बैलेंस होना जरूरी है, एंड ऑल्सो देयर शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग एस्पेक्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन जो वट एवर यू आर राइटिंग, एंड स्पेशली दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द कंक्लूजन। तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता था कि मोस्ट ऑफ माई आंसर्स आइदर हैड अ फॉरवर्ड लुकिंग आर्ग्यूमेंट और फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन और एक बैलेंस पर्सपेक्टिव। इन दिस क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे दो चीजें हमेशा बैलेंस होगी, एक होती है इंडिविजुअल राइट्स, एक होती है नेशंस का राइट। वहां पे आई कैन कंक्लूड सुटेबली दैट हाउ दिस राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन जो कि स्टेट का राइट है, एज वेल एज बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, एंड अल्टीमेटली जो फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है वो। अगर ऐसे कंक्लूजन सुटेबली कर दिया देन यू आर बाउंड टू गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दैट। नाउ आई वुड बी डिस्कसिंग कि जो मैं एफएलटी डिस्कशन लिया हूँ या फिर जो अदर टीचर्स जो एफएलटी डिस्कशन लिए हैं सिविल्स दिल्ली में, कि जो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कमिट कर रहे हैं इन देयर ओन आंसर, कि कभी कभी कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑन स्पॉट नहीं जा रहा है, या फिर कंक्लूजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर में डिमांड ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो जो स्मॉल स्मॉल नुआंसेस होते हैं ना, वही एक्चुअली डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है कि क्यों किसी को 420 या 430 आ रहा है और क्यों किसी को 350 आ रहा है। तो वो एस्पेक्ट जो वो स्मॉल नुआंसेस होते हैं वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर 19 एंड आर्टिकल 31, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया, क्वेश्चन था इवोल्यूशन के बारे में, इसने जस्ट एक वाज अ फंडामेंटल राइट, ना इसमें करंट का कॉन्टेक्स्ट है, ना इसमें फुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे ये भी रहता ना कि इट हैज बीन क्लब्ड अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट, देन ये इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। बट यहाँ पे ला करके छोड़ना, देन द एग्जामिनर विल लूज देयर इंटरेस्ट कि यार ये बस इतना तक में ही लिमिट कर दिया है। नाउ दूसरा वाला पार्ट है, आफ्टर एनालाइजिंग द इंट्रोडक्शन, दूसरा वाला पार्ट है कि बॉडी को कैसे इंप्रूव करना है। हम लोग का डिमांड था, दो डिमांड था, पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक ही पोर्शन में सब कुछ को एड्रेस कर दिया है ना। इवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर बोल दिया गया, जहाँ पे क्वेश्चन में ही डायरेक्टली बोला गया है कि गो अस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो वहां पे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि आप अच्छे से बाइफरकेट कर दो। एंड आइडियली 10 मार्कर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी में एटलीस्ट यू आर यूजिंग 2 सब हेडिंग्स, एक सब हेडिंग्स अगर ऐसे कर रहे हैं देन एग्जामिनर विल लूज इंटरेस्ट कि यार एक पॉइंट में 10 पॉइंट नोबडी इज गोइंग टू रेट इट, मतलब इतना फोकस नहीं रहता है जनरली एग्जामिनर का। तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मे बी ही कुड हैव डिवाइडेड दिस आंसर इनटू 2 पार्ट, जहां पे एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो डिस्कस कर रहे हैं, फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो डिस्कस कर रहे हैं। ये होने के बाद फिर कंक्लूजन में फिर यही हो जाता है कि इन्होंने अगेन ये डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन यूज करा है, बट अगेन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू गिव अ बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग, कि जहां पे अगर डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन भी दे रहा है, एट द सेम टाइम यू विल आल्सो हैव टू हाईलाइट कि इंडिविजुअल राइट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन को एड्रेस किया जा सकता है देन इट विल बी एन आइडियल आंसर। नाउ जो पहला टेस्ट पेपर था उसका ये दूसरा टेस्ट पेपर है जो हम लोगों ने डिस्कस करा था। इसमें भी देखो जो इंट्रोडक्शन है इट इज विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, बॉडी है, बॉडी में बाइफरकेशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यहाँ पे की कोर्ट जजमेंट्स हैं, बट ये बाइफरकेशन के बाद कुछ मॉडल मतलब कंटेंट नहीं है, फिर कंक्लूजन भी कुछ नहीं है, और जब कंक्लूजन नहीं रहता है देन इट इज नॉट अ सेंस ऑफ कंप्लीशन फॉर द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, तो इसीलिए इसमें फिर डिफिकल्ट होगा टू स्कोर अ गुड मार्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what constitutional rights do minority communities have with respect to establishing and administrating educational institutions in India? Discuss in the context of the recent Supreme Court judgments. Now यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछ दिया गया है कि जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जजमेंट आया था, जहाँ पे देयर वाज दिस टसल कि वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। थीम भी आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये है माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर, जो कि माइनॉरिटी राइट्स ऑब्वियसली इन अ डेमोक्रेसी इट बिकम्स ऑल द मोर रेलिवेंट। तो इसी थीम के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ एक आइडियल इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में अगेन यू कैन स्टार्ट विथ आर्टिकल्स, इसके लिए आर्टिकल 30 है जहां पे इट हैज टॉक्ड अबाउट राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
तो इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है रिलेटेड की माइनॉरिटी से, वो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डेमोक्रेसी एंड माइनॉरिटी के राइट्स के ऊपर अगर आपका कोई इंट्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर एएमयू केस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन वो हो गया। नाउ अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। पहला है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल, यहां पे ही बोल रहा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नाउ प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर मेंस में भी पढ़ा होगा, जो आर्टिकल 30 है, इट टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी के राइट्स रिगार्डिंग एस्टेब्लिशिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नाउ आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्लॉज ए है, आर्टिकल 30 क्लॉज 2 है। नाउ दैट यू नीड टू एक्सप्लेन इन योर डिमांड 1 वाला पार्ट। वो तीनों एड्रेस होना चाहिए क्योंकि इट स्पेशली टॉक्स अबाउट कि क्या है वो राइट्स। उसके बाद फिर जाके देखो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो जजमेंट्स बोला गया है, या फिर जजमेंट्स आइडियली होना चाहिए कि कितने सारे जजमेंट्स आए हैं या फिर क्या है। तो उसमें फिर जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आई थिंक 1967 का जजमेंट है जहां पे माइनॉरिटी को नहीं रिकॉग्नाइज किया गया था एएमयू को, वो एक जजमेंट जा सकता है। दूसरा जो अभी जो रिसेंट जजमेंट आया 2023-2024 में जहां पे एएमयू को रिकॉग्नाइज किया है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ वो दोनों कॉन्टेक्स्ट देने के बाद नाउ यू कैन नॉट मिस द इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट, although it is not specifically asked in the question, but ये implied है, ये implicit demand of the question है कि while addressing, क्योंकि देखो whenever any legislation comes up, whenever any judgments comes up, तो there must be some context to it, there must be some impact to that। और अगर impact, अगर if you are not able to write it in your answer, then obviously it is going to, वो sense of completion जो होगा ना आंसर में वो नहीं होगा। तो उस चक्कर में हमें लगता है कि एक जो इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट है वो बताना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट में बोथ पॉजिटिव बता सकते हैं कि क्या क्या होगा, कि माइनॉरिटी राइट को इनहेंस होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके अगर अगेंस्ट कुछ ऐसा स्टेप्स लिया गया है बाय द गवर्नमेंट और अदरवाइज, देन उसको चेक एंड बैलेंस के यूज में हो सकता है। फिर निगेटिव भी हो सकता है कि माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस पर फिर गवर्नमेंट कैन नॉट रेगुलेट, नहीं रेगुलेट करेगी तो देन ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ डिकोटोमी बिटवीन गवर्नमेंट एज वेल एज और मे बी द एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो वो एक थोड़ा सा डिकोटोमी सॉल्व करना है। एंड फाइनली एक बैलेंस्ड कंक्लूडिंग, इसमें बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है बिकॉज द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्ड अबाउट माइनॉरिटी एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट माइनॉरिटी राइट शुड बी बैलेंस्ड विद द मेजॉरिटी राइट। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एक बैलेंस्ड कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ना हम लोग को कॉपी देख करके समझना है कि कहाँ पे स्टूडेंट्स लैग कर रहे हैं या फिर कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे इफ यू गो थ्रू द इंट्रोडक्शन, आर्टिकल 29 रेलिवेंट ही नहीं है। एग्जामिनर विल गेट टू नो कि यू आर ट्राइंग टू ब्लफ द एग्जामिनर, मार्क्स वहां पे कट सकते हैं या फिर द एग्जामिनर विल नॉट बी इम्प्रेस्ड विद द सेम। आर्टिकल 30 लिखा है बट उसमें भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसमें। सिमिलरली फिर यहाँ पे माइनॉरिटी आर अलाउड, यही मतलब सेम चीज को, सेम क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके बस एक आर्टिकल 30 डाल करके इन्होंने आगे बढ़ गए हैं। तो इंट्रोडक्शन में यू नीड टू सेट द कॉन्टेक्स्ट एज वेल ना, कि जो क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके लिख रहे हो तो एग्जामिनर तो जान ही रहा है ना कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू पैराफ्रेज और ब्लफ द एग्जामिनर, तो वो चीज नहीं करना है। दूसरा प्रॉब्लम है कि जैसे यहां पे है, आप देखिए एग्जामिनर विल लव if you are using subheadings, multiple subheadings by understanding the demand of the questions। यहां पे ये था कि पहले तो what constitutional right था, दूसरा डिमांड था कि जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें क्या हुआ है, तीसरा हम लोग का इम्प्लिसिट डिमांड था कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ एक राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज दिया, एक तो प्रॉपर सब हेडिंग्स नहीं है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बेसिकली योर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। यहाँ पे तो ये दिया ही नहीं हुआ है। इफ द पर्सन वुड हैव यूज्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज अंडर, तो उसके बाद फिर अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 30 क्लॉज 2 तो जाकर के ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाता, बट ये नॉर्मल एक चले गए हैं। सिमिलरली देयर इज नो अदर सब हेडिंग्स, तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एंड इवन इफ यू गो थ्रू द कंक्लूजन में भी द पर्सन हैज टॉक्ड अबाउट इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, बट एट द सेम टाइम एक थोड़ा सा बैलेंसिंग होना चाहिए था कि हाउ द स्टेट्स इंटरेस्ट टू रेगुलेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये फिर अच्छा सा आंसर निकल करके आएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड एंड अगेन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर मेरे इंटरव्यू के ही टाइम पे अनफॉर्चुनेट केस हुआ था जस्टिस वर्मा का, जहाँ पे लार्ज हिप्स ऑफ कैश वाज फाउंड। नाउ दैट
was in fact asked in the interview, that may be asked in the मतलब prelims में भी I think एक tangential question था इससे related, and this becomes all the more relevant for the mains, क्योंकि ये वाला question directly hit कर रहा है mains के syllabus को भी, and Supreme Court is directly mentioned in the syllabus of the UPSC. Now the question is explain the impeachment process. पहला क्वेश्चन ये है कि impeachment process क्या है of the Supreme Court judges under the Constitution. Constitution के अंडर क्या है. दूसरा है कि does it balance judicial accountability and independence. ये भी एक दो सब थीम्स निकल के आ रही है. तो फर्स्ट इसका जो इम्पीचमेंट है, तो इसमें आइडियल इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए. अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रीआइट्रेशन, आइडियल इंट्रोडक्शन जनरली स्टार्ट विद आर्टिकल. ठीक है, आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का लाइंस है, या फिर कोई चीफ जस्टिस का या जस्टिस के जो लाइंस है अगर आपको कहीं मिल गए, एंड आई एम श्योर आई थिंक एफएलटीज में भी मेंशन्ड है कि एक यूनिक लाइन है जस्टिस का जहां पे दे टॉक अबाउट इम्पीचमेंट प्रोसेस. वो अगर इंट्रोडक्शन हो गया तो वो स्पॉट ऑन हो जाएगा. दैट विल बी लाइक आई कैचिंग इंट्रोडक्शन फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो. अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर तो इतने सारे कॉपीज चेक करते हैं ना, तो थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन एकदम रेलिवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, तो फिर जाके इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. एक बार थीम आइडेंटिफाई करके इंट्रोडक्शन अगर हम लोगों ने दे दिया तो डिमांड अब समझने की जरूरत है. प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट किस में मेंशन्ड है? आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में. तो उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे पार्लियामेंट होती है, वो एक उसमें फाइल किया जाता है अगेंस्ट पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, फिर पार्लियामेंट कैसे स्क्रूटनी कमेटी है वहां पे जाती है वो चीजें, फिर उसके बाद फिर जाके पार्लियामेंट फिर पास करता है, एंड फाइनली द अप्रूवल इज बीइंग गिवन बाय द प्रेसिडेंट. नाउ दैट यू नीड टू एक्सप्लेन इन दिस फर्स्ट पार्ट. ये आपका मतलब ये आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम टाइप का बना दिया और इसमें मल्टीपल ये दे करके कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ऐसे करके हम लोग जा सकते हैं. उसके बाद इंपीचमेंट होने के बाद हो गया. दूसरा क्वेश्चन है डज इट बैलेंस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी. नाउ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज वन थिंग, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अनदर थिंग. वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. नाउ इंपीचमेंट अपहोल्ड्स जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये वाला क्वेश्चन पे डिमांड करना है, हिट करना है, और दूसरा अल्टीमेटली जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे. नाउ आफ्टर एड्रेसिंग दीज टू एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, दीज टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, इट बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अपना कंक्लूजन दें. क्योंकि इवेंचुअली अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये प्रॉब्लम को बता रहा है कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस इंपीचमेंट प्रोसेस. यहाँ पे बैलेंसिंग से ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को भी फिर सेंस ऑफ कंप्लीशन होगा कि चलो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेशन देते हुए ये कंक्लूड किया है. नाउ सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आया था 2010 में, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. फिर नेशनल जुडिशियल बिल है या फिर नेशनल जुडिशियल सर्विसेज है, कमीशन है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर उस वे में अगर कंक्लूड किया जाए, देन इट विल गिव अ सेंस ऑफ कंप्लीशन टू द एग्जामिनर, एंड देन दे विल मार्क यू गुड लाइक 5 to 6 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे आई वुड बी टॉकिंग कि जो भी एफएलटीज के जो आंसर्स हैं कि उनमें क्या गड़बड़ी है. नाउ हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं स्टूडेंट से. फर्स्ट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन का कॉन्टेक्स्ट अच्छा सेट किया है कि आर्टिकल से स्टार्ट कर दिया, बट ये जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है दैट वाज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन. ये पूरा क्वेश्चन नहीं था, ये जस्ट वन एस्पेक्ट था, और इसमें देखो पूरा इन्होंने यूज कर दिया है इम्पीचमेंट के प्रोसेस पे ही. यहां तक इम्पीचमेंट का प्रोसेस ही चल रहा था, एंड देन द person has not addressed the second demand of the question, that does it balance judicial accountability and independence. तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एड्रेस करना. एंड सेकेंडली, जस्ट टू पॉइंट इट आउट कि ये जो कटिंग वगैरह सब होता है, दिस इज नॉट लुक्ड वेरी फेवरेबली इन द यूपीएससी, बिकॉज ये जो कटिंग के चक्कर में ना एग्जामिनर विल गेट टू नो दैट यू डोंट हैव अ कोहेरेंट थॉट. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, ट्राई टू मिनिमाइज दिस कट. मतलब मैंने 2 मेंस लिखा है, and by God's grace there was literally no cut mark in all my papers, and I was able to complete the entire paper on time. तो वो important हो जाता है because it shows कि how coherent your thoughts are, how मतलब वो जो होता है ना कि एक डायरेक्शन में आपके थॉट्स मूव होने चाहिए, इसीलिए ना ये कटिंग वगैरह सब अवॉइड करने का है. नाउ इस वाले में भी यहाँ पे the person has mostly talked about impeachment process. Now again the person has not talked about balancing the judicial accountability and independence, and hence ये पूरा आंसर नहीं है और फिर इसमें मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है. Now moving on to the next question. Cooperatives are often described as the third tier of the economic democracy.
पहला है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉपरेटिव्स, दूसरा है कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। उसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यूपीएससी लव्स टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, जैसे जीएस 4 के 2024 के जीएस 4 के क्वेश्चन में जाओगे आप, या फिर जीएस 2 के क्वेश्चन में जाओगे, तो यूपीएससी लव्स टू सेट द कॉन्टेक्स्ट कि ये कॉन्टेक्स्ट है एंड नाउ एक्सप्लेन थिंग्स। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट critically examine the extent to which cooperatives in India have fulfilled this role. This role का मतलब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वाला रोल ये है। नाउ अंडरस्टैंड द थीम। थीम क्या है? कॉपरेटिव्स है। बट एक और चीज इसमें समझने वाली बात है कि यहाँ पे द क्वेश्चन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इम्प्लिसिट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि कॉपरेटिव्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द थर्ड टियर ऑफ द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो पहला आपका जो इंट्रोडक्शन के बाद जो थीम आएगा, जो डिमांड होगा, ये होगा कि कैसे ये थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है। तो इंट्रोडक्शन कोऑपरेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें अगेन आर्टिकल है, आर्टिकल 19 वाला जो पोर्शन है वो आप दे सकते हैं, या फिर सहकर से समृद्धि जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो लाया गया है, वहां से सेट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, या फिर अगर रिसेंट में कोई जजमेंट्स या फिर जो स्टैट्यूट्स आए हैं वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन हो जाएगा एक आइडियल। अंडरस्टैंडिंग द डिमांड की इम्प्लिसिट डिमांड क्या है, कॉपरेटिव्स एज द थर्ड टियर ऑफ द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो थर्ड टियर कैसे है वो समझाना पड़ेगा इसमें। ये है इम्प्लिसिट डिमांड। इम्प्लिसिट डिमांड अगर आपको नहीं इतना बड़ा मतलब एक्सप्लेन करके लिखना है, तो मैं हमेशा लास्ट टाइम मैं क्या करता था कि एक नॉर्मल डायग्राम बना देता था, जहां पे आई वुड टॉक अबाउट कि हाउ दिस इज थर्ड टियर ऑफ द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट में आई वुड एक्सप्लेन अलोंग विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स बिकम इंपॉर्टेंट इन दिस। नाउ दूसरा कॉन्टेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन। आपको दोनों तरफ से दिखाना पड़ेगा कि द एक्सटेंट टू विच कोऑपरेटिव्स इन इंडिया हैव फुलफिल्ड दिस रोल, कि ये किस तरह से कोऑपरेटिव्स इन इंडिया है जो ये रोल है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, कैसे फुलफिल किया है। तो पहला तो इसमें लिमिटेशंस दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या लिमिटेशंस हुई हैं, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे मिसिंग है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, पॉलिटिकल मिसयूज है, डुअल कंट्रोल ऑफ द कोऑपरेटिव्स है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा चैलेंजेस भी दिखा सकते हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में। एंड लास्टली आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इनहेंस किया है एट द थर्ड, मतलब जो क्रिटिकली एग्जामिन है तो आपको पॉजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फिर जाके ये वाले में वे फॉरवर्ड जो कंक्लूजन होना चाहिए, इसमें 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी हो सकता है, एक आपका वे फॉरवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स इज द गेम चेंजिंग थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बोथ इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एज वेल एज टू अपलिफ्ट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोऑपरेटिव्स हैज बिकम ऑल द मोर रेलिवेंट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे कोऑपरेटिव्स कैन बिकम एन एजेंडा ऑफ द सोशल चेंज, एज वेल एज you can give solution oriented conclusion as well. Now we'll move to the next portion, जहां पे I would be telling कि क्या गड़बड़ी हो रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में cooperatives are recognized in the constitution to fulfill the dream of गांधी जी। Now ये जो मतलब अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट डायरेक्टली हिटिंग टू द क्वेश्चन, राइट। मतलब ये जस्ट नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है कि हाँ गांधी जी का ड्रीम था, ठीक है गांधी जी का ड्रीम था, बट व्हाट कैन बी द मोस्ट रेलिवेंट इंट्रोडक्शन टू दिस, मे बी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 43 है या आर्टिकल 19 है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें भी आप देखो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोऑपरेटिव इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप तो अगर इंट्रोडक्शन में ही दे देंगे तो भी चलेगा। दिस वाज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन वाज कि कोऑपरेटिव्स एज द थर्ड टियर इन द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे मिसिंग है। फिर रोल ऑफ कोऑपरेटिव ठीक है इन्होंने दिया है लिमिटेशन दे करके, फिर कंक्लूजन देयर इज नो कंक्लूजन। नाउ इफ देयर इज नो कंक्लूजन देन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली मिस 1 or 2 मार्क्स इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। नाउ कंक्लूजन एक्चुअली गिव सेंस ऑफ कंप्लीशन टू द एग्जामिनर, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कंक्लूजन देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये वाले में भी क्वेश्चन में कि इन्होंने कॉन्टेक्स्ट सेट करा है डायरेक्टली बेनिफिट ऑफ द कोऑपरेटिव्स। नाउ वो जो इम्प्लिसिट डिमांड था वो भी मिसिंग हो रहा है, तो उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि क्या इम्प्लिसिट डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस होता है, क्या एक्सप्लिसिट डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस होता है, एंड देन कंक्लूड सुटेबली। नाउ आई वुड बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड इज एम्ब्रेसिंग अ न्यू नॉर्मल वेयर न्यू फॉल्ट लाइन्स। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स आपको समझना पड़ेगा। तो और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि क्या मैं अलग करता था, मेन एग्जामिनेशन में भी किया था, मैं एफएलटीज में भी करता था। जो भी मुझे मेन कीवर्ड्स रहते थे वो मैं धीरे से अंडरलाइन कर देता था, सो दैट एग्जामिनर वुड गेट टू नो कि आई एम अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आई एम by just underlining these keywords, I have understood the demand of the question. Now I am going to address that. Now that you guys can also replicate in the actual examination. There is nobody is going to cut marks for that. You can just underline key words as well as key demands of the question.
Moving further, the question is, the world is embracing a new normal where new fault lines are being reconfigured in the Indo-Pacific. यहाँ 3 वर्ड हैं, न्यू नॉर्मल है, न्यू फॉल्ट लाइन्स है, इंडो पैसिफिक है. कॉन्टेक्स्ट क्या है, थीम क्या है, इंडो पैसिफिक. अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन. इंडो पैसिफिक इज बिकमिंग ऑल द मोर रेलिवेंट, जहां पे वर्ल्ड के मे बी 50 to 60% ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम और ट्रेड वैल्यू इज पासिंग थ्रू. इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द ट्रेड वैल्यू इज पासिंग थ्रू, ट्रेड वॉल्यूम इज पासिंग थ्रू. तो इंडो पैसिफिक हैज बीन बिकमिंग ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. अभी जैसे चाइना का जो एसर्टिवनेस स्टार्ट हुआ है, ताइवान इशूज चल रहे हैं, या फिर यूएस और चाइना का जो राइवलरी नया नया इमर्ज हो रहा है, तो इंडो पैसिफिक इशू हैज बिकम ऑल द मोर रेलिवेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थीम ऑफ द क्वेश्चन, अब इसका आइडियल इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए. इंट्रोडक्शन एनीथिंग रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक, की इंडो पैसिफिक कैसे इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में. उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका डिमांड क्या है. नाउ देयर इज, इफ यू just reread the question, you'll get to know that the question is also talking about old fault lines. ओल्ड की जो पुराने जो फॉल्ट लाइंस थे, उसमें कुछ तो गड़बड़ी होगी ना, या फिर कुछ तो होगा जहां से इंडो पैसिफिक में रेलिवेंट हो रहा है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में पहले आपका डिमांड 1 ऑफ द क्वेश्चन जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि ओल्ड फॉल्ट लाइंस क्या है. नाउ इसमें अगर आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, बिकॉज दैट इज इम्प्लिसिट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो आधे पेज में ही हो जाना चाहिए. तो वहां पे ना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता था, I used to use hub and spoke model. जैसे मैं बताता हूं, यही वाला यहां पे लिख दिया मैं ओल्ड फॉल्ट लाइन. ओल्ड फॉल्ट लाइन में क्या क्या था, 4-5 पॉइंट्स मैंने लिख दिया. उसके बाद नाउ आई विल बी मूविंग टू द सेकंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज न्यू नॉर्मल ड्यू टू द न्यू फॉल्ट लाइंस इन द इंडो पैसिफिक. वो हो गया, वो डिमांड मैंने कर दिया. अब अंडरस्टैंड कि जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, देन इंडिया का रोल, द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया का रोल क्या है. ये दिस इज इम्प्लाइड थीम, मतलब ये ना मैं लास्ट टाइम भी फॉलो किया था, आई फॉलोड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल, कि जो भी आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, आई ट्राई टू लिंक इट विद इंडिया, कि इंडिया कैसे रेलिवेंट हो सकता है, इंडिया के लिए कैसे क्या हो सकता है. एज ओल्ड प्रिंसिपल है, जैसे चाणक्य का मंडला थ्योरी है, या फिर वासुदेवाय कुटुंबकम है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते थे. तो अंडरस्टैंड कि आपको इंडिया का रोल भी दिखाना है. तो द थर्ड इम्प्लिसिट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज कि इंडिया का जो रोल है इन नेविगेटिंग द रिकन्फिगर्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर, वो भी आपको लिखना है. वंस यू हैव रिटन दैट, तो आपको कंक्लूड कैसे करना है. कंक्लूड जनरली आईआर के क्वेश्चन में इट शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग, इट शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, और इट कैन बी ऑल्सो कोड बेस्ड कंक्लूजन, कि कैसे यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम and you are trying to lead the world into a positive direction. For example, our honorable prime minister का ही एक line है that Indo-Pacific should be open, secured, stable and hassle-free lanes of communication in the Indo-Pacific. Now that line we can use it for conclusion. एक तो 2 चीजें हो जाएगी. एक तो यहाँ पे इंडिया का इंपॉर्टेंस भी दिखा देगा कि how we are trying to lead the world to a more secure and peaceful world order, and also the examiner will look into कि हाँ आप इंडिया के माइंडसेट से भी क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि जो एफएलटी के जो ऑलरेडी डिस्कस्ड पेपर है, उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है जिसके कारण सिलेक्शन रुक सकता है, या फिर कहाँ पे और वर्क किया जा सकता है, सो दैट कि वही छोटे छोटे चीज में जहाँ पे हम लोग एक्चुअली में वर्क कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में, मतलब आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बीइंग रिटन इन द इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा. सेम गोज फॉर दिस इंडो पैसिफिक. ऑल्दो आई बिलीव कि इंट्रो डायग्राम में भी रेलिवेंट हो सकता है, बट इफ यू आर गिविंग से हाफ पेज ऑफ योर क्वेश्चन, हाफ पेजेस मतलब बहुत हो जाते हैं यार, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको मे बी आधे पेज में कन्फाइन कर दे कि यहाँ पे ये इंडो पैसिफिक रीजन है. नाउ यू आर ट्राइंग टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे डिमांड ही नहीं समझ में आया है कि कैसे न्यू फॉल्ट लाइंस इमर्ज हो रहे हैं, कैसे ओल्ड फॉल्ट लाइंस ब्रेक हो रहे हैं. वे फॉरवर्ड भी दिया है, बट देयर इज नो सब्सटेंस टू दिस, देयर आर नो एग्जांपल्स टू दिस. अगेन इंडो पैसिफिक में इंडिया का रोल भी नहीं हाईलाइट हुआ है. नाउ इफ यू आर गोइंग टू राइट दीज काइंड ऑफ आंसर्स, you may end up getting only 2 or 3 marks instead of good 5 or 6 marks. ये सब क्वेश्चंस में you should be getting at least 6 marks. Now 6 marks लाने के लिए वही आपको डिमांड समझना पड़ेगा, इंडिया का रूल समझना पड़ेगा आईआर में, and then you can accordingly march forward. Now moving on to the next question. Parliament is not merely a legislative body, it is the custodian of the nation's conscience. Explain.
डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड फॉर अ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट्री कंडक्ट? ये भी एक पार्ट है. जस्टिफाई विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स. नाउ अंडरस्टैंड, इनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, थीम क्या है? थीम इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी. पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि पार्लियामेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बोथ इन प्रीलिम्स, बोथ इन मेंस, एज वेल एज इन मेंस एंड इवन इन इंटरव्यू. इसलिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या आर्टिकल्स हैं, क्या जजमेंट्स हैं, पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट के में कैसे चीजें पास होती है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो चेक्स एंड बैलेंस वाला जो प्रिंसिपल है, आयर कोहले वर्सेस जो आयर कोहले जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो. तो ये सब जो छोटे छोटे चीजें आपको एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एकदम क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, सो दैट वेन एवर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम, यू आर डायरेक्टली हिटिंग द बुल्स आई. देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थीम एज वेल एज की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया है, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन आप पार्लियामेंट से स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउ पार्लियामेंट हैज बीन एक्टिंग एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नेंस इन द कंट्री, एंड हाउ इट हैज बीन एक्टिंग एज ए चेक्स एंड बैलेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द फ्रंट ऑफ द गवर्नेंस. तो वो आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है. आपका आर्टिकल्स इंट्रोडक्शन हो सकता है. आपका जो इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटेड टू पार्लियामेंट है वो हो सकता है. उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन में डिमांड क्या है. पहला है कि पार्लियामेंट इज नॉट मेयरली अ लेजिस्लेटिव बॉडी. Now you'll have to understand कि ये implied demand of the question है. I keep talking about implied demand क्योंकि most of the times ये होता है कि जो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स होंगे जो मेंस में अपियर कर रहे हैं, ऐसा होगा कि उनको एक्सप्लिसिट डिमांड तो पता होगा, बट दे वुड नॉट बी अंडरस्टैंडिंग कि इम्प्लिसिट डिमांड क्या है. और अगर इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज इम्प्लिसिट डिमांड, देन इट इज गोइंग टू इनहेंस एज वेल एज मैक्सिमाइज योर मार्क्स बाय इवन लाइक 2 मार्क्स 3 मार्क्स इन वन क्वेश्चन, स्पेशली 15 मार्केट में तो डेफिनेटली. तो ये हम लोग का पहला इम्प्लिसिट डिमांड है कि लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट है या नहीं है, अगर है तो कैसे हम लोग को प्रूफ करना है ना. पार्लियामेंट का काम क्या है? अमेंडमेंट पास करना. पार्लियामेंट का काम है बजट पास करना. पार्लियामेंट का काम है कोई स्टैट्यूट या कोई लेजिस्लेशन है उसको पास करना. तो पहले तो हम लोग को वो प्रूफ करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट इज नॉट मेयरली लेजिस्लेटिव बॉडी. उसके बाद दूसरा बात हो जाता है कि इट इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशंस कंसेंस. तो वो भी एक जो की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे पार्लियामेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशंस कंसेंस. नाउ जस्ट मूविंग अ स्टेप फर्दर, आपने एक्सप्लेन कर दिया दोनों पार्ट को, मे बी 1.5 पेजेस में आपका इंट्रोडक्शन और ये हो गया. डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड फॉर अ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट्री कंडक्ट? पार्लियामेंट्री कंडक्ट का चार्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? उसमें आप समझिए, डू यू थिंक आपसे ही पूछ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आपको बोथ साइड आर्ग्यूमेंट्स आइडियली देना चाहिए कि कैसे चार्टर ऑफ पार्लियामेंट्री कंडक्ट इज गोइंग टू हेल्प द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया, एंड ऑल्सो इट इज गोइंग टू कीप चेक्स एंड बैलेंस ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. तो ये आप अगर एक बार आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर दे दिए, उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दे दिए कि अगर चार्टर आ गया एंड इफ इट बिकम्स इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, देन इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पावर. जो बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल द कोर्ट कीप ऑन रीइटरेटिंग, इट मे बी हार्मफुल अगेंस्ट द पार्लियामेंट्स के इंटरेस्ट. उसके बाद हम लोग फिर एक वे फॉरवर्ड और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दे देंगे, जहां पे there should be some kind of accountability on the side of parliament also. There should be some kind of supervisory mechanism on the part of parliament कि parliament should be functioning to the best of their abilities. Now I would be discussing about जो FLTs के जो पेपर है उसमें क्या गड़बड़ी हुई है. यहाँ पे आप देखिए इंट्रोडक्शन में देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट व्हाटसोएवर, ना आर्टिकल मेंशन है, जस्ट लॉ मेकिंग बॉडी. लॉ मेकिंग बॉडी तो इट हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन द क्वेश्चन. तो आप सेम चीज को अगर रिआइटरेट करें, सेम चीज को पैराफ्रेज करें, तो एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू लाइक इट एंड इवेंचुअली मार्क्स आपके कट होंगे. इसमें भी आप देखिए यहाँ पे जो पहला इम्प्लाइड डिमांड जो था, पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, वो भी एक मिसिंग है. उसके बाद फिर आप देखिए जो इन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट किया है नेशन के कॉन्सेंस में, कि नेशन के कॉन्सेंस क्या है. नेशन के कॉन्सेंस क्या है इन्होंने लिखा है, बट अगेन नीड फॉर अ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट्री, उसमें भी ये दे करके देयर वाज आस्किंग डू यू थिंक. इसमें ये था कि डू यू थिंक, तो उसमें जब व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्किंग डू यू थिंक और क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिकली एग्जामिन, देन यू नीड टू शो 2 पार्ट्स ऑफ द आंसर, कि एक होना भी चाहिए, एक नहीं भी होना चाहिए. ये भी एक मिसिंग है कि एक पार्ट है, नीड इन्होंने लिख दिया है बट
नीड नहीं भी हो सकता है, ये इन्होंने नहीं लिखा है। वे फॉरवर्ड लिखा है, आइडियली 15 मार्कर क्वेश्चन में मैं हमेशा ये बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि देयर शुड बी वे फॉरवर्ड टू द आंसर, बिकॉज 15 मार्कर में आपको 3 पेजेस दिए जाते हैं, राइट। और एग्जामिनर कहीं ना कहीं 15 मार्कर में आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी भी देखिए कि हाउ दिस पर्सन इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन, हाउ दिस पर्सन इज मोर प्रैक्टिकल इन हिज ओन अप्रोच। तो वो भी तो एग्जामिनर को चेक करना है। दैट इज लाइक काइंड ऑफ यूपीएससी वे ऑफ चेकिंग योर ओन टेम्परामेंट कि हाउ मच सॉल्यूशन ओरिएंटेड यू आर। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है, आप वे फॉरवर्ड देकर के फिर कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड ये भी कर सकते हैं, कंक्लूड ये सब में इंपॉर्टेंट समझिए कि जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गए, पार्लियामेंट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ पे है अक्रॉस जुरिस्डिक्शन। इट मे बी बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इट मे बी बोरोड फ्रॉम यूएसए, इट मे बी बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यूके एटसेट्रा। तो आप अगर उस तरह से कंक्लूड करते देन एग्जामिनर इज गोइंग टू लाइक इट एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप गेटिंग गुड मार्क्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगर यूपीएससी के सिलेबस में जाएंगे देन यू विल फाइंड आउट कि पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो गया, या फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो गया, सोशल डेमोक्रेसी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें अगर आपका अच्छे से थीम प्रिपेयर्ड है, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू से एक्स फैक्टर नोट्स ऑफ द सिविल्स डेली, या फिर आप एफएलटी के ही गो थ्रू करेंगे, देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या थीम पूछे जा रहे हैं, और दीज आर ऑफन रिपीटेड थीम्स बाय द यूपीएससी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑल द मोर रेलिवेंट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट पॉवर्टी एंड हंगर एंड ऑल्सो अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पॉवर्टी और हंगर का क्या इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन को समझते हैं। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इज इसेंशियल, जो पॉवर्टी को हटाना है वो तो जरूरत है, हाउएवर बट नॉट सफिशिएंट। टू एलिमिनेट हंगर, कि हंगर को अगर हटाना है आपको तो सिर्फ पॉवर्टी हटाने से काम नहीं चलेगा, it may demand something more rather than just eradicating poverty। उसके बाद ये स्टेटमेंट को बोल रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो बेसिकली ये जो पहला लाइन है उसको एनालाइज करना है हम लोग को क्रिटिकली। और जो तीसरा अदर डिमांड है, व्हाट मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज आर नीडेड टू एड्रेस बोथ, यहाँ पे बोथ दिया हुआ है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग द डिमांड। डिमांड क्या है? पॉवर्टी इरेडिकेशन कैन हेल्प एलिमिनेट हंगर। पहला ये डिमांड है कि कैसे पॉवर्टी अगर हम लोग खत्म करेंगे धीरे धीरे वो हंगर को भी एलिमिनेट कर देगा। हाउएवर क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि बट इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं होने वाला है। मे बी एजुकेशन हो जाए, मे बी कुछ और चीजें हो जाए, अफोर्डेबिलिटी हो जाए। जो 3A वाला जो फॉर्मूला है, इसी में 3A का जो फॉर्मूला है, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, नाउ दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि कैसे हंगर को एलिमिनेट करेंगे। तो दूसरा वाला पार्ट वही है कि इरेडिकेटिंग पॉवर्टी अलोन इज नॉट इनफ टू एलिमिनेट हंगर। जो हम लोग का अदर डिमांड है, अदर डिमांड क्या है कि व्हाट मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज आर नीडेड टू एलिमिनेट बोथ। बोथ पूछ रहे हैं ना, तो एक आपका थीम हो जाएगा कि स्ट्रेटजीज टू एड्रेस पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे हम लोग हटा सकते हैं, एंड लास्टली स्ट्रेटजीज टू एड्रेस हंगर। इसी में आपका वे फॉरवर्ड भी दिख रहा है बिकॉज अल्टीमेटली यू वुड बी टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। और इसमें एक और वैल्यू एडिशन आप लोग कर सकते हैं कि जो मैं हमेशा करता था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना मैं एक चार्ट बना के रखता था या फिर एक केस स्टडी बना के रखता था, जहां पे द से गुड मॉडल बाय सेवरल डीएम और गुड मॉडल बाय सेवरल स्टेट्स, जहां पे देयर हैज बीन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी और हंगर। जैसे मुझे अभी भी याद है एक यूपी का बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल था कि कुपोषण रावण सुपोषण राम, सो दैट वाज द इनिशिएटिव टू एलिमिनेट बोथ हंगर एंड पॉवर्टी। जैसे अन्नपूर्णा प्रोग्राम है ऑफ बोगाईगांव, जो असम की जो एक डिस्ट्रिक्ट है, नाउ दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो वहां पे भी ना यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जब जैसे हम लोग का 3 पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 हम लोग का आंसर हो गया, तो कहीं पे भी एक आप आराम से ये बना करके यहाँ पे केस स्टडी दिखा सकते हैं। केस स्टडी में यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाउ द बेस्ट प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड एंड हाउ द बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी रेप्लिकेटेड थ्रू आउट इंडिया। तो दैट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन is being demanded in the UPSC, and if you are able to do it with the help of FLTs, with the help of X factor notes, then obviously तुम्हारे मतलब आप लोगों के मार्क्स काफी इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद फिर जाके एक कंक्लूजन होना चाहिए इसमें। कंक्लूजन वही कीवर्ड जो है यहाँ पे पॉवर्टी है या हंगर है, उससे रिलेटेड आप कंक्लूजन देकर के निकल सकते हैं। नाउ आई वुड बी डिस्कसिंग कि जो अभी जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे भी है
यहाँ पे एक विशियस साइकिल को दिखा दिया गया है। नो विशियस साइकिल मे बी इट वाज नॉट डायरेक्टली हिटिंग टू द क्वेश्चन, बट अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लिसिट डिमांड को भी एड्रेस किया जा रहा है कि इसका जो इम्प्लिसिट डिमांड था वो भी एड्रेस हो रहा है। उसके बाद फिर जाके इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन हंगर। इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी जनरली इज नॉट डायरेक्टली हिटिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि कैसे इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इज इसेंशियल। ना इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन हंगर, एक तो देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। मैं आइडियली सबको बोलता हूं कि आप जो सब हेडिंग्स जो यूज कर रहे हैं, इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन से अगर नहीं है तो एग्जामिनर मे नॉट बी एबल टू रिलेट विथ यू, कि आप भले उसके अंदर पॉइंट्स दे रहे हैं बट सब हेडिंग्स बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे ये वाला है तो उसमें मैच हो जाना चाहिए। दूसरा बात है कि यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी टू एलिमिनेट हंगर, अगेन दैट इज नॉट मैचिंग विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस भी दे दिया गया। स्ट्रेटजीज टू एड्रेस बोथ पॉवर्टी एंड हंगर। नो, पॉवर्टी एंड हंगर आर टू थिंग्स, टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। वहां पे क्वेश्चन में ही बोला गया था कि हाउ टू एड्रेस बोथ द डिमांड। इसको अगर बाइफरकेट कर दे, मे बी एक में पॉवर्टी दिखा दे, एक में हंगर दिखा दे, तो द क्वेश्चन विल बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, और फिर जाके आपको मार्क्स स्कोर करने में आसान हो जाएगा। एंड फाइनली, अगर आपके पास कोड बेस्ड, ये सब क्वेश्चन में कोड बेस्ड आप तैयार करके रखिए। एक्स फैक्टर नोट्स में काफी सारे डाटा भी दिए हुए हैं, वहां से आप तैयार कर लीजिए। कुछ अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है जो हंगर और पॉवर्टी के बारे में बोला गया, आप उसको तैयार करके रखिए, देन कंक्लूड सुटेबली। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। पहले समझते हैं क्वेश्चन कि जो भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, जो भी इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं टुवर्ड्स वर्ल्ड, वो GS2 एंड GS3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जिस तरह से थिंग्स पैन आउट हुई हैं, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर, तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ईयर्स मेंस। तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है FLT में। स्टार्ट करते हैं। द ऑपरेशन सिंदूर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज डॉक्ट्रिनल इनोवेशन ऑफ मिलिट्री रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट अटैक्स। पहला ये है। इन लाइट ऑफ दिस, अगेन सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी लव्स सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। इन लाइट ऑफ दिस, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड इवेल्युएट द फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ये है पहला। ऑपरेशन सिंदूर है, मिलिट्री रिस्पॉन्स है, इंडियाज डॉक्ट्रिनल इनोवेशन है, एंड अल्टीमेटली ऑपरेशन सिंदूर का सिग्निफिकेंस दिखाते हुए फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, ये दिखाना है हम लोग को। तो इंट्रोडक्शन वही हो सकता है कि नाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स मोर ऑफेंसिव पॉलिसी, या फिर अजय डोवल सर का कोई स्टेटमेंट हो गया, या फिर S जयशंकर सर का कोई स्टेटमेंट हो गया, या फिर ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कि हाउ चाणक्य का जो मंडला थ्योरी था, इट टॉक्स अबाउट कि अगर आपके नेबर्स थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं, देन यू देयर आर सेवरल सिचुएशन जहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, जहाँ पे यू हैव टू टेक एक्सट्रीम मेजर्स एज वेल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, आफ्टर गिविंग द कॉन्टेक्स्ट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो फर्स्ट डिमांड क्या है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कैसे डॉक्ट्रिनल इनोवेशन है, इंडिया का ओन इनोवेशन है। आज तक इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे राइवलरी हो गया या फिर रिलेशन हो गया, इंडिया हैज नेवर अप्लाइड ऑफेंसिव पॉलिसीज। मोस्टली हम लोग का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म हुआ करता था, जहां पे मे बी वी वर जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम डिफेंसिव टू ऑफेंसिव मैकेनिज्म। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशन सिंदूर का एक डॉक्ट्रिनल इनोवेशन आपको बताना पड़ेगा, डिमांड हो गया। दूसरा डिमांड हो जाएगा कि पॉजिटिव इंप्लीकेशंस ऑफ द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस क्या क्या है। ये हो गया पहला पार्ट का एड्रेस होने के बाद। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर क्या है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे एक ये पॉजिटिव इंप्लाइड, मतलब ये कर रहा है, पॉजिटिव इंप्लीकेशंस कर रहा है इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप में। ऑपरेशन सिंदूर से क्या क्या बेनिफिट हो सकती है। एक तो स्पिलिंग आउट ऑफ द टेररिस्ट जो होता है वो नहीं होगा। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान के जो टसल वाले पॉइंट है वो आइदर परमानेंटली सॉल्व होने की भी इसमें पोटेंशियल है, बिकॉज नाउ पाकिस्तान वुड बी थोड़ा सा एप्रीहेंसिव कि इंडिया के पास भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी टू टेक सम offensive actions. Now Pakistan will also not be supporting or will not be involved in the state sponsored terrorist activities. तो उस context में we'll have to highlight the positive implications of the same. But however, having said that, there might be some concerns कि ऑपरेशन सिंदूर के क्या concerns हैं, वो आप highlight करते हुए उसके बाद फिर जाके इसमें way forward होना चाहिए, क्योंकि it talks about problem, it talks about India's step, it talks about India and Pakistan relations. तो उसमें वे फॉरवर्ड होना इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। तो वे फॉरवर्ड आप करने के बाद फिर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आप दे सकते हैं, जहां पे इंडिया के इंटरेस्ट में
आपको कुछ भी इनिशिएटिव लेना है। नाउ अंडरस्टैंड कि जो भी इंटरनल सिक्योरिटी हो गया या जो भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो गया, यू आर गोइंग टू ज्वाइन द गवर्नमेंट, है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते हैं, आपको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ ऐसा सॉल्यूशन देना चाहिए या फिर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना चाहिए जहां पे इंडिया के इंटरेस्ट को हाईलाइट किया गया है, जहां पे इंडिया के इंटरेस्ट को फोरफ्रंट पे रखा गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस तरह से सुटेबली कंक्लूड करते हैं, देन इट विल बी गिविंग अ सेंस ऑफ कंप्लीशन टू द एग्जामिनर। ठीक है, नाउ हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी हुए हैं जो स्टूडेंट्स एफएलटी दिए हुए हैं आफ्टर डिस्कसिंग। आप देखिए कि एक डेट से स्टार्ट किए हैं बट ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है। मे बी यहाँ पे एक मैप दिया जा सकता था कि ऑपरेशन सिंदूर कहाँ पे हुआ है, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद एक मैप देने से ना वो एग्जामिनर को पता रहेगा कि ओके नाउ यू नो द आंसर एग्जैक्टली। वहीं पे अपफ्रंट ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको पता है। नाउ एग्जामिनर को एक बार अगर वो इंप्रेशन आ गया कि आपको पता है, डेफिनेटली you'll end up getting good 7 to 8 मार्क्स इन 15 मार्कर क्वेश्चन। वो हो गया। आप देखिए इसमें इम्प्लाइड जो डिमांड था कि इंडिया का जो डॉक्ट्रिनल इनोवेशन है वो इन्होंने नहीं कवर किया है। कि इंडिया का डॉक्ट्रिनल इनोवेशन क्या था कि जैसे डिफेंसिव से जो ऑफेंसिव की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर ये करा है, फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप ये भी ठीक है, बट अगेन इसमें आपको कहीं ना कहीं एक वर्ड्स रिलेट करके आपको सब हेडिंग्स बना करके उसके बाद फिर देयर इज नो वे फॉरवर्ड टू दिस। नाउ इन अ 15 मार्कर क्वेश्चन at the cost of reiteration, way forward becomes all the more important because this shows that you are a solution oriented person and UPSC or UPSC's examiner love the fact that you are a very solution oriented person। तो आपको वो भी अपने कॉपी के थ्रू दिखाना है। एंड फाइनली देन यू कंक्लूड कि how operation sindoor has become all the more relevant in the present times and in the future times also it is going to act as a barrier as well as initiatives against India's quest for against terrorists। Now having discussed all the major questions of the FLT, मैंने ये सब क्वेश्चन को खुद मैंने हैंड पिक करा है और आई थिंक दीज मेनी क्वेश्चंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस ईयर मेंस। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं हैंड पिक्ड हैं, ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं यूपीएससी थीम्स को डायरेक्टली हिट कर रहा है। तो मेरा एजेंडा यही था कि वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग देयर शुड बी एटलीस्ट 70 to 80% हिट रेशियो कि अगर ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो देन सम वे और द अदर इट शुड बी आस्क्ड इन द मेन यूपीएससी मेंस। तो वो मैंने करा है। इन द सब्सिक्वेंट सेशन आई वुड ऑल्सो बी डिस्कसिंग अदर एफएलटीज जहाँ पे GS1, GS3, GS4 के जो मेजर क्वेश्चंस हैं जो आई इन माई पर्सनल ओपिनियन आई बिलीव इट कैन बिकम वन ऑफ द मोर रेलिवेंट सेक्शंस विच कैन बी आस्क्ड इन दिस ईयर यूपीएससी मेंस। तो वो आई विल बी डिस्कसिंग। Do watch it and do give me a feedback, and subsequently I would be doing some more FLTs discussion. Thank you.